Assalamu alaikum. Good evening, everyone, and welcome to the Mediversa Alliance introductory webinar. My name is Kirat Haya, and I'll be your host today. We're excited to share with you the vision and mission of Mediversa Alliance, a global community uniting healthcare students and professionals worldwide. MBA creates a collaborative platform for education and innovation in the healthcare field, promoting advancement in medical research and development. Our community empowers healthcare students and professionals to connect, learn, grow together, fostering a culture of collaboration and knowledge exchange. Our founder, Muhammad Mudassir Wakil, envisioned a platform to bridge gaps in healthcare education. His journey began with the realization that many healthcare students lack awareness about their roles and degree program scope. Today, MBA is a global community united by a shared vision to unite medical students, empower them to contribute to public well-being, and provide a platform for concerns and solutions. In the next few minutes, we'll delve into MBA's objective, achievements, and future plans. Let's explore how MBA is revolutionizing healthcare education, empowering the next generation of healthcare leaders. Now, I'll share with you the vision of MBA to create a platform where healthcare students are invited to excel in their academic and professional journey through guidance, support, and leadership opportunities. Healthcare students and professionals unite to spread healthcare awareness, fostering a well informed society on critical healthcare issues. Charitable initiatives are driven by MBA's healthcare community to improve public health and well being, especially for underserved population. Now we are excited to introduce our speaker for today, Fatma Idris, a final year pharmacy student at Punjab University of College of Pharmacy. Fatma brings a wealth of knowledge and experience to our webinar. In addition to her academic pursuits, she deserves the community advisor at Mediversa Alliance, where she actively engaged in fostering educational growth. Today, Fatma will be sharing valuable insights on effective educational strategies throughout the pharmacy student experience. Please join me in welcoming her. Thank you so much, Kirat, for your kind words. Assalamu alaikum, everyone. I welcome you all for being here today with me. My name is Fatma Idris, and I'm a fresh graduate from Punjab University College of Pharmacy, and also I'm working as a community advisor at Mediversa Alliance. Okay, slides सब कुछ हो रही हैं? It's okay. All right. Today, the topic of my discussion is educational strategy throughout pharmacy student life. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें फार्मेसी पढ़ाई क्यों जा रही है, ठीक है, मतलब ऐसे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम ऐसे कौन से चैलेंजेस जो स्टूडेंट्स, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट थी जो चैलेंजेस मैंने फेस किए थे, ठीक है, और आप सभी मेरे साथ रिलेट करेंगे कि हाँ ऐसा होता था या ऐसा हो रहा है, हम चैलेंजेस जो फेस करते हैं। इसके अलावा एज अ टॉप परफॉर्मर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रैटेजीज, ठीक है, शेयर करूंगी जो जिन्होंने मुझे हेल्प किया कि मैं अच्छे तरीके से अपने 4 साल गुजार चुकी हूँ, जो मैंने जो ना स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की, ईच एंड एवरीथिंग। तो लेट्स बिगिन। डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी जो कि बहुत सिंपल सी है, जो कि जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मेरे टीचर ने मेरे साथ शेयर की थी और वो मेरे दिमाग में है। It is an art and science of preparing the medicine from the natural and synthetic sources, for example, through mineral, microbial like fungus and bacteria, animals and plants. Now let's come to the objectives, that is development, drug development. क्यों ड्रग को डेवलप करने की क्या पीछे वजह है, ठीक है, और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। इसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये कि हम ड्रग को इसलिए डेवलप करते हैं कि हमारे पास मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हों। अब आप सबको पता है कि मार्केट में एक ड्रग है हमारे पास पेनाडोल, ठीक है। अब जब हमारे पास डेंगू आता है, एक स्पेसिफिक सीजन है जिसमें डेंगू ने आना ही आना है, तो हमारे पास मार्केट में पेनाडोल का क्राइसिस हो जाता है कि हमें कहीं से पेनाडोल नहीं मिल रही, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो हम कवर अप कर सकें जो हमारा क्राइसिस चल रहा है। अब लेकिन हमारी जो हैं पेशेंट्स हैं उन सबके दिमाग में कि हमने नीला पत्ता ही लेना है, उसी से ही हमने ठीक होना है। तो हमें अवेयरनेस जो उसके रिगार्डिंग अपने पेशेंट्स को देनी चाहिए, ठीक है, ये हम सब ऑब्जेक्टिव्स इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट वो अफोर्ड भी करता है ड्रग जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, क्या अफोर्ड कर रहे हैं हमारे पेशेंट्स, ये इसमें आएगा हमारे पास। नेक्स्ट फार्माकोलॉजी, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स मेरे साथ इधर रिलेट करेंगे, उसको टफ सब्जेक्ट समझते हैं, उनकी जान जाती है इसे पढ़ते हुए। क्या है फार्माकोलॉजी? इट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स, इंटरेक्शंस, उनके थेराप्यूटिक यूजेस हर ड्रग के, ठीक है, जो क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वी हैव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि ड्रग्स के, जो कि हमारी आपकी हमारी बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो ड्रग है उसका स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाए, उसकी एक्टिविटी ऑप्टिमल हो जाए, कि वो हमें बेनिफिट दे। दैट कम्स अंडर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वी हैव फार्मास्यूटिक्स। अब वो जो ड्रग है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, ठीक है, उसको हमने एक फॉर्मुलेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। हम एक रॉ मटेरियल है जो कि हम किसी भी प्लांट या एनिमल से ले रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली पेशेंट को नहीं पकड़ा देंगे। वी डोंट नो द डोज, वी डोंट नो कितनी अमाउंट उसके पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है, हो सकता है उसकी टॉक्सिक डोज हम उसको दे दें, तो उसको एक अमाउंट में हम कन्वर्ट करते हैं, लाइक इन अ टैबलेट और इन अ कैप्सूल, ठीक है, उसकी एक डोज है कि हमने इतनी डोज ही देनी है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल कॉज हार्म टू द पेशेंट। ये सब फार्मास्यूटिक्स में आता है,
क्लिनिकल फार्मेसी इज ऑल अबाउट पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट की केयर, पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसमें आएगा। जो आप हॉस्पिटल सेटिंग में देखते हैं, आपने पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करना है, उसको आपने गाइड करना है ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, दैट कम्स अंडर क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट वी हैव फार्मेसी प्रैक्टिस। जो भी आप ये 5 साल का एकेडमिक नॉलेज गेन करते हैं, उसको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको आपने प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे कन्वर्ट करना है। आगे जाके आप लोग मतलब फोर्थ और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में किधर जाना है, क्या करना है, आपका एक्सपोजर क्या होगा। नेक्स्ट यू हैव रेगुलेटरी अफेयर्स। आई वुड से कि ड्रग डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अफेयर्स का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और वो गहरा ताल्लुक कैसे है कि आपने फॉर एग्जांपल एक ड्रग बना लिया, ठीक है, इसके अलावा जब आपकी वो ड्रग मार्केट में तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके रेगुलेटरी जो अफेयर्स है ना वो उसको अप्रूव नहीं करते, जब तक आप उनके लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं करते। बेशक यू आर लिविंग इन अमेरिका, बेशक यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, बट ऑल कंट्रीज हैव देयर मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ही आपका ड्रग मार्केट में आएगा। और अगर आप उनको लॉज के साथ कंप्लाई नहीं करते, आपका ड्रग खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा मार्केट में से। तो ये रेगुलेटरी अफेयर भी इसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वी हैव फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स डील विद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपके पास है 2 ड्रग्स हैं, एक आपका 1 लाख रुपए का ड्रग है और एक आपके पास 10,000 का ड्रग है। एवरीवन ये बात समझते होंगे कि हर बंदा वो अगर दोनों का काम सेम है, ठीक है, फायदा दोनों का सेम है, तो कौन पागल होगा जो कि 1 लाख का ड्रग लेगा? ऑब्वियसली वो 10,000 को प्रेफर करेगा। दिस इज फार्माको इकोनॉमिक्स कि आपके पास वो ड्रग बेनिफिट कितना दे रहा है आपको, ठीक है, आपको कम प्राइस में कितना ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। और मैं आपको बताऊं, इट इज ऑल अबाउट कि ये एक चेन है। एक आपके बैक पे सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से आगे आपकी ये हॉस्पिटल और क्लिनिकल सेटिंग होती है, उसके आगे आता है आपका पेशेंट आपका एंड कंज्यूमर है। सबसे पहला आपका वो प्राइमरी कंज्यूमर वो है जो कि मैन्युफैक्चरर है। उससे उधर तक कैसे आना है, ठीक है, ये सब इसमें वो कॉस्ट इस तरीके से मैन्युफैक्चर, क्योंकि ये प्रॉफिट की गेम है सारी। मैन्युफैक्चरर ने ड्रग ऐसा बनाना है कि वो पेशेंट को भी फायदा दे और उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। सेम इज द केस विद हॉस्पिटल। और कंज्यूमर ने तो वही चीज लेनी है जो कि उसके मतलब बजट में आता है या जो वो खरीद सकता है ड्रग। ये आगे हमारी फार्माको इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट मूविंग टू द डिवीजन ऑफ फार्मेसी, ये HEC जो हमारा सिलेबस बनाता है, उन्होंने फार्मेसी को इन 5 चीजों में डिवाइड किया है। बिफोर डाइविंग इनटू इट, आई वुड लाइक टू अ क्वेश्चन टू फ्रॉम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जो मैथ्स एंड बायोस्टैट्स आप लोग पढ़ते हैं और माइक्रोबायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये इनमें से किस डिवीजन के अंदर आते हैं? और आई एम वेटिंग, आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है ना मैसेज करके बताएं। आई वुड लाइक टू नो। आई assume nobody knows the answer, क्योंकि आप लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया एज अ स्टूडेंट कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो, आई एम आस्किंग, मैथ्स एंड बायोस्टैट्स किसके अंदर आता है और माइक्रोबायोलॉजी। ओके अब्दुल बासित, यू आर राइट, ऐसा ही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन, क्योंकि आप सिर्फ एक ने रिप्लाई किया, काफी स्टूडेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मैं यही समझूंगी आप लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया। यू आर जस्ट स्टडिंग द सब्जेक्ट्स, ठीक है, यू आर नॉट फोकसिंग कि असल में हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका हमें क्या फायदा। अब आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैथ्स एंड बायोस्टैट हम फार्मेसी प्रैक्टिस में, यानी हम ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये मेरा इधर पॉइंट था एक्सप्लेन करने वाला। बाकी फार्मेसी प्रैक्टिस, स्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी। फार्माकोग्नोसी यू नो एनिमल्स एंड प्लांट्स से जो हम रॉ मटेरियल ड्रग लेते हैं उसको रिफाइन करके हम कैसे पेशेंट को देंगे कि वो उसकी पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो। ओके, नेक्स्ट फार्मेसी करिकुलम जो कि 5 सालों का है। मैं इसमें बताऊंगी आप लोगों के कौन से कोर्स सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप लोग अगर अभी से फोकस करेंगे तो आप 4th ईयर फाइनल ईयर तक आके आप थोड़े रिलैक्स होंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो मैंने ठीक भी किया है, पिछले साल जो किया, या फिर आप लोगों को अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करके यार मैं डिग्री में 5-6 साल के आगे मुझे यही नहीं पता, या आप लोग कॉम्प्लेक्स में ना आए। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ईयर। इसमें आपके पास इंग्लिश, एनाटमी, फार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी, फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री है। अब इसमें आप देख रहे हैं मैंने उनकी डिवीजन्स भी साथ लिखी हैं और उनकी सब डिवीजन्स भी लिखी हुई हैं। फिजिकल फार्मेसी आपको पता ही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो है ना इसमें फार्मास्यूटिक्स से लेके बायोकेमिस्ट्री तक ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपका कोर है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे जो अगर आप सेकंड ईयर में आ गए कि उनको यकीन नहीं आएगा कि हम फर्स्ट ईयर में जो ये पढ़ के आए हैं वो आगे आपकी किस तरीके से फायदेमंद होगा। सो लेट मी टेल यू, फिजिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स है, फाइनल ईयर तक जो है ना फार्मास्यूटिक्स ने आपकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। इस पे ये आपकी बेस है, इसमें आपको जो जितने दुनिया में फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है ना वो इसके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। इसके अलावा सस्पेंशन, इमल्जेंस, इनके बारे में इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ही चीजें बार बार आगे चलती जाएंगी। नहीं आपको अगर अभी से पता होंगी आगे जाके मुश्किल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज अ वर्सेटाइल सब्जेक्ट, ठीक है। फिजियोलॉजी जो है ना ये आपकी मैं कहूंगी इट इज द मदर ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर आपकी फिजियोलॉजी नहीं अच्छी, आपको फार्माकोलॉजी में नहीं समझ आएगा कि मैं कहाँ पे उन चीजों को रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फार्माकोलॉजी ड्रग्स है, ड्रग्स कहाँ पे लेके जाने आपने, ऑब्वियसली यू वांट इट टू एक्ट ऑन योर बॉडी, और बॉडी फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट योर बॉडी, ऑल द इफेक्ट्स, ऑल द फंक्शंस दैट आर एक्टिंग इन योर बॉडी। तो फिजियोलॉजी का ताल्लुक ये है फार्माकोलॉजी के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फाइनल ईयर में यू आर गोइंग टू स्टडी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री की जो माँ है ना दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपके स्ट्रक्चर्स की बेस नहीं है ना, आपको नहीं पता कि बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या है, उसको स्टेबलाइज कैसे करना है, फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ लगाने हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर फार्मूलाज, व्हाट आर द मोलेकुलर फार्मूलाज एंड ऑल दैट, ये सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है।
बायोकेमिस्ट्री की मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल दूंगी, जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में और वो इसी से जान छुड़वाते हैं कि नहीं पढ़ी जाती, देयर आर टन्स ऑफ रिएक्शंस इन इट। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल है, आप लोग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ते होंगे, ठीक है, बहुत सुना, हम एफएससी में भी पढ़ के आए हैं। आपको मैं बताऊं, डायबिटीज जो कि एक पाकिस्तान में आम हो चुकी है, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज हो रही है, उसकी डिस्टर्बेंस क्यों होती है? जस्ट क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, आपकी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, उसमें मैल फंक्शनिंग हो गई है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। तो एक छोटी सी डिजीज है जो कि आप क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, और वो आपकी कहाँ पे लिंक्ड हो रही है? बायोकेमिस्ट्री के साथ। तो इट मींस यू हैव टू स्ट्रेंथन योर बेस। नेक्स्ट यू हैव सेकंड ईयर में आपके पास डोजेज फॉर्म, आई टोल्ड यू स्यूटिक्स आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, सेकंड ईयर में भी स्यूटिक्स आ गई है। देन यू हैव माइक्रोबायोलॉजी, अब्दुल बासित आंसर्ड इट, के फार्मास्यूटिक्स में वो आता है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, एंड मैथ्स एंड बायोस्टैट्स है। अच्छा, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है ना, आप लोग अभी भी मैसेजेस में लिख सकते हैं, मैं एट द एंड ऑफ द सेशन उनके आंसर कर दूंगी, ठीक है, साथ साथ अगर आपके माइंड में कोई आ रहे हैं। नेक्स्ट, सॉरी, इसमें फार्माकोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगी। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिससे सबकी जान जाती है, और आज काफी लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे कि हम फार्माकोलॉजी कैसे पढ़ें, ठीक है, तो लेट मी आंसर इट। फार्माकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसको मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ठीक है, बहुत मुझे पसंद था ये सब्जेक्ट, मतलब मुझे ना चीजें रिलेट करके पढ़ना बहुत पसंद है। मैं इसको जो फिजियोलॉजी के साथ पढ़ती थी, मैंने बहुत इंजॉय किया था इस सब्जेक्ट को। इसमें जो है ना, मैंने निमोनिक्स खुद बनाने, मैंने जो है ना खुद वो ड्रग्स को जो है ना किस तरीके से रिलेट करना, मतलब मैंने अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हाटसोएवर, ठीक है, उनके जो है ना आगे जाके आप बिलीव नहीं करेंगे, आगे जाके सीवीएस में जाके आप लोग जो है ना उनको रिलेट करेंगे कि अच्छा वो वाले हम इनर्वेशन उस पे होती हैं, उस पे ऐसे एक्ट करता है। तो ठीक है, इस सब्जेक्ट को आपने इंजॉय करना है, इसको मगरू नहीं उतारना, ठीक है, इसको जितना इंजॉय करेंगे उतना मजा आएगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट, फार्माकोग्नोसी है, बेसिक है ये वाली, इसमें ऊपर ऊपर सब कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी कि क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं और क्या क्या ड्रग्स अवेलेबल हैं। बाकी मैथ्स एंड बायोस्टैट्स, ये भी अब्दुल बासित ने ही आंसर किया था कि फार्मेसी प्रैक्टिस है, जब इसका जो है ना फायदा आपको फाइनल ईयर में होगा, मैथ्स एंड बायोस्टैट्स का। अब वो पूछेंगे आप कैसे क्या इस्तेमाल होगा, आपको फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें आपने जो बायोस्टैट्स के अंदर आप लोग पढ़ते हैं काई स्क्वायर, टी टेस्ट लगाते हैं, एनोवा लगाते हैं, यही इनको ही इस्तेमाल करके आपने अपना आगे प्रोजेक्ट को जो ना रिफाइन करना होता है, एनालाइज करना होता है, रिजल्ट्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको फजूल नहीं पढ़ाई जा रही, ठीक है, उसका कोई ना कोई फायदा है। चलें, इस्लामिक पास स्टडीज है ना, इसको आप लोग कह सकते हैं कि वो एचईसी की रिक्वायरमेंट है, वो आपके करिकुलम में इसका कोई नहीं, ना इसने आगे जाके आपने किसी लैब के अंदर बैठ के उधर ग्लोब बना रहा होना या कुछ लिखना होना है, तो ये सीन है। नेक्स्ट, थर्ड ईयर में डिस्पेंसिंग कम्युनिटी, इसमें आपकी फार्मेसी प्रैक्टिस आ गई है, एनालिसिस है, फार्माकोलॉजी इधर भी है, कंप्यूटर है, इसको भी कंप्यूटर तो हर चीज की आप प्रेजेंटेशन भी कंप्यूटर के ऊपर ही दे रहे हैं, तो ये तो आपका चलना ही चलना है, हर चीज अब ऑटोमेटिक है कि आपने उस पर ही करना है। फाइनल ईयर में आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोफार्म, सॉरी दिस इज फोर्थ ईयर में हमारे पास फार्म क्वालिटी है। फिर फाइनल ईयर आ गया हमारे पास, इसमें मैंने आपको जिक्र किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होगा, क्लिनिकल फार्मेसी है हमारे पास, इसमें हमारी फार्माकोलॉजी की नॉलेज इस्तेमाल हो रही है, ओके। अच्छा, अब ये जो मेरी लाइफ के थे ना 5 साल, जिसमें मैंने जो एनालाइज किया ना कि हमारी जो फार्मेसी है ना, ये बेसिकली 3 फेजेस हैं। इसको मैं एक ट्रायंगल भी कह सकती हूँ। ट्रायंगल इस तरीके से कहूंगी कि ये एक सबसे पहले फर्स्ट ईयर आपकी फाउंडेशन फेज है। जिस इमारत की बेस नहीं ना स्ट्रांग होती, वो इमारत कभी खड़ी हो नहीं सकती, वो गिर जाएगी नीचे। जितनी फर्स्ट ईयर में मेहनत कर लेंगे ना, अभी से लेके चलेंगे, चीजों को साथ साथ लेके चलें, समझें, नहीं समझ आ रहा, ऑनलाइन इतनी चीजें पढ़ी हैं, यू हैव गॉट योर सीनियर्स, आप उनसे हेल्प लें, ठीक है, लेकिन नहीं ऐसे करना आपने कि जो ना बाद में देखी जाएगी, बाद में देखी जाएगी। हर स्टूडेंट ऐसे ही करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने भी की हुई है, लेकिन मैं समझ गई थी कि करूंगी अपना ही नुकसान करूंगी। नेक्स्ट में आपके पास सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है, ठीक है, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको वही जो फिजियोलॉजी आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, वो आपने फार्माकोलॉजी के अंदर डाल देनी है। सेकंड और थर्ड ईयर में प्री क्लिनिकल फेज है, ये एक रोड मैप है, बस आपने चलते जाना, सफर है आपका, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अंदर हर्डल्स भी आएंगे, ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, आप लोग फेड अप भी हो जाएंगे कि यार क्या डिग्री ले ली है मैंने, लेकिन परेशान नहीं होना, हर बंदा गुजरता है इस चीज से और आप लोग गुजर जाएंगे इसमें, इसलिए मोटिवेटेड रहें। कोई इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग समझ के चलें, चीजों को रिलेट करें। मेरा बार बार इस बात पे एम्फसिस है कि चीजों को रिलेट करें, स्पेशली जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, आई वुड से फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, ये इंटरलिंक्ड है। जितना आप इनको रिलेट करके करेंगे ना, आप लोगों की लाइफ ईजी है। तो क्लिनिकल फेज में आपके पास मतलब अपना जो प्रीवियस आपका है ना नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो आपका क्लिनिकल फेज में आ जाएगा। वो आप देखेंगे अपनी, पहले आप लोग ड्रग्स के बारे में पढ़े हैं ना, क्लिनिकल फेज में आप लोग देखेंगे कि आप कौन सी डिजीजेस के लिए कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है। आई गेस फोर्थ ईयर के अंदर आप लोगों को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है उसके ड्रग्स के बारे में, जो उनकी एंजाइना हो गया, एरिथमिया हो गया, इन सब के लिए कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं, कौन से ड्रग्स जो है ना वो प्रेफर्ड होते हैं, फर्स्ट लाइन एजेंट्स हैं, सेकंड लाइन एजेंट्स हैं, ये अंडरस्टैंड। आई थिंक फोर्थ और 5 ईयर की मेरे पास ऑडियंस नहीं है इतनी, तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर से बता रही, सुपरफिशियल नॉलेज दे रही हूँ उसका। नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी, एडवाइस दूंगी, वो ये है, आपने बुक से पढ़ना है, ठीक है। बुक से नहीं पढ़ेंगे आपका नुकसान है, आप लोग मार खाएंगे, सही वाली जो मार होती है ना वो खाएंगे अगर आप लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि किसी और के नोट्स पे रिलाई करना, इट इज नॉट समथिंग आई सजेस्ट,
ओके, क्योंकि हर बंदे की ना एक कैलिबर डिफरेंट होता है, हर बंदे का जो ना जो पिकिंग पावर है, या फिर एक चीज को एक पेज दे दिया जाए ना दो बंदों को, हर बंदा डिफरेंट तरीके से पढ़ता है, वो उसको कहा जाएगा ना किसमें से समरी लिखें, हर बंदे की डिफरेंट समरी के पॉइंट्स होंगे। तो आप किसी के कैसे रिलाई कर सकते हैं नोट्स के ऊपर? मैं आई नो स्टूडेंट लाइफ में सबको शॉर्टकट चाहिए कि बस हमने पास ही होना है यार, पास ही होना है। नहीं, हमने पास नहीं होना, हमने आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है। और ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है कि आप लोग कहेंगे नहीं हमने कौन सा आगे जाना है आप लोगों ने, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे, लड़कियां भी जाएंगे, लड़के भी जाएंगे। तो आप लोगों ने बुक्स को देखना है। कुछ मैं बुक्स लेकर आई हूँ जो मैंने खरीदी हुई हैं, फिर तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाकी बाद में भी अगर मुझसे आप लोग पूछेंगे तो मैं बारी बारी हर सब्जेक्ट के बारे में बता दूंगी कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है। आपको मैं दिखाती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने ये बुक ली थी BS बाल की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने ली थी ये दो बुक्स, ठीक है। ये मुश्ताक अहमद की हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये मैंने इन दोनों से पढ़ा था, इसमें डिवाइड हुए हैं, कुछ चैप्टर्स कार्ड्स के एक बुक में है, फैट्स के एक बुक में है, तो ये आप देख लीजिएगा अगर आपको सूटेबल लगे। फिजिकल फार्मेसी जो है ये मैंने अग्रवाल ली थी इसमें। इसके अलावा जो मेरी थी फार्माकोलॉजी की, ये मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है। मैंने न्यू बुक खरीदी है क्योंकि इंशाल्लाह आई विल बी एस्पायरिंग USA, मैं उधर का लाइसेंस एग्जाम देना चाहती हूँ, तो उस वजह से मैंने न्यू बुक खरीदी है। क्योंकि जो पहली ऑलराइट उबैद मैं शेयर कर दूंगी। ओके, ये लिपिन कोड मैंने न्यू बुक खरीदी है क्योंकि जो मेरी पहली बुक थी उसके बिल्कुल बस स्कैटर हो चुकी हुई थी, उसके पेजेस भी चुरमुर चुरमुर हो गए थे। तो फार्माकोलॉजी के लिए मैंने लिपिन कोड ली हुई है, बेस्ट बुक है, ठीक है। आप लोगों को आपके टीचर शायद कहें कि आप लोग कैटजिंग से पढ़ें, या एक और बुक है आई डोंट रिमेंबर इट्स नेम, ईव्स एंड समथिंग कोई नाम है उसका, ईव्स से नाम स्टार्ट होता है। तो लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप लोग लिपिन कोड लें, ठीक है। इट इज इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, हर चीज इजी डिस्क्राइब की है, इजी वर्ड्स के अंदर। तो फार्माकोलॉजी आप लोग इससे पढ़ेंगे तो मैं तो कहूंगी आप लोग पास हो जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। और आगे भी जाके अगर आप लोग लाइसेंस एग्जाम जो बेशक पाकिस्तान का देते हैं, बेशक बाहर का जहाँ का भी देते हैं, तो आप लोगों के लिए ये आसानी होगी इसमें। बाकी नोट्स के बारे में मैं ये कहूंगी, अगर आप लोग किसी के नोट से पढ़ना चाहते हैं, इट्स ओके, आप लोग पढ़ लें उसके नोट से। आप लोगों को हो सकता है उसके नोट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, लेकिन खाली उन पर रिलाई करना अकलमंदी नहीं होगी, ये नुकसान ही है। बस वो जो होता नहीं चल से चल काम है, जस्ट ये वो होगा। ओके नेक्स्ट, अब काफी स्टूडेंट्स ना इस तरह का कहते हैं कि मतलब बुक वर्म्स बन जाएंगे। बुक वर्म्स इन सेंस के बस ठीक है हमने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, टॉप करना है, पास होना है, टॉप होना है, टॉप करना है, पास करना है, ये वो ये उनका होंगे। लेकिन इस बीच में जो है ना आप लोग अपनी जो स्किल्स हैं, जिनको मैं सॉफ्ट स्किल्स कहूंगी, उनको आप लोग जो है ना मिस आउट करते हैं, जो कि नहीं सही। आप लोगों को इन सब चीजों के साथ साथ जो है ना इन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग है, जॉइंट स्टडी कम्युनिटी। अब आप लोग पूछेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। बिलीव मी, आपका जो फार्मेसी करिकुलम है ना वो भी आपको ये सब चीजें सिखाता है, लेकिन कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग अपनी मस्तियों में लगे होते हैं, वो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं इन चीजों में। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आप लोगों के पास, कोई भी क्लास के अंदर जो है ना इवेंट्स आते हैं, आप लोग हर यूनिवर्सिटी में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्पोर्ट्स वीक तो हर किसी के अंदर ही होगा। उधर से आप लोग स्टार्ट करें, बहुत छोटा सा लेवल है, आप लोग स्टार्ट करें, आप लोग ऑर्गेनाइजर्स या जो भी आप लोगों की डेजिग्नेटेड पोस्ट आपको दी जाती है, आई डोंट नो, ठीक है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, आप लोग कम्युनिकेट करें, सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करें, इस तरह आपकी कम्युनिकेशन एनहांस होगी। नेक्स्ट यू हैव लीडरशिप स्किल्स। अब ये आप लोग कैसे आएगी आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स? आपकी स्टार्ट होते हैं आपके प्रैक्टिकल से, ऑलराइट। प्रैक्टिकल्स में मोस्ट प्रोबेबली जहां तक मुझे आइडिया है, मेरे यूनिवर्सिटी में तो ऐसे होता था, आप लोगों का भी शायद हो, कि उसके अंदर ग्रुप्स बनते होंगे प्रैक्टिकल्स के। आई डोंट थिंक सो इंडिविजुअली सबको ऑपरेटर्स दिया जाता होगा, ग्रुप्स ही बनते होंगे। तो लीडरशिप जो है ना आपने किसी बंदे को लीड दे दी है ना, ठीक है, एक बार उसने ले ली, नेक्स्ट टाइम आपने लीड लेनी है, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा कोई आपकी बेइज्जती तो नहीं कर देगा ना, आपका फ्रेंड ही है ना, वो आपको बता देगा कि नहीं ऐसे नहीं करना यार, ऐसे करना है। आप लोगों ने लाजमी लीड करना है, पीछे चुप करके नहीं बैठना, ना फोन यूज करना है नीचे बैठ के, ठीक है। आप लोग लीड करें उसको, ठीक है, और अपनी ओपिनियन लाजमी दें, आपने चुप नहीं, ठीक है। अगर कोई और बंदे की लीड है ना, आप लोग ओपिनियन दें अपनी, आपको बोलना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो रहे हैं। आप अपने देखें छोटे लेवल से अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो ही आप बड़े लेवल पे जाके बोल पाएंगे। अगर आप इधर ही गुमसुम चुप चुप करके बैठे होंगे तो ये नहीं चलता सीन। नेक्स्ट यू हैव पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में आप लोगों को पता है प्रेजेंटेशंस आ गई हैं, क्लास में जो आप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करें। आप लोगों को आई गेस आप सबका तो सेमेस्टर सिस्टम होगा, आप लोगों की तो असाइनमेंट्स, क्विजेस एंड प्रेजेंटेशंस होती हैं। इस तरीके से आप लोग पब्लिक स्पीकिंग करेंगे छोटे लेवल से। मैं यही कहूंगी बार बार, छोटे लेवल से स्टार्ट करें, फिर बड़े लेवल के ऊपर जाएं, ठीक है। क्लास में आपसे अपने क्लासमेट्स के सामने बोला नहीं जाएगा, तो जो बाकी ऑडियंस बैठी होगी उसके सामने आप लोग क्या बोलोगे? पार्टिसिपेट करें हर चीज के अंदर, कुछ नहीं होता, कोई आपकी बेइज्जती नहीं होती, आप लोग इजी रहें, ठीक है। कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता अगर किसी ने आपको बात सुना भी दी है ना, जस्ट मूव ऑन। नेक्स्ट, सोसाइटीज और कम्युनिटीज जो आपकी यूनिवर्सिटीज में है, आप वो ज्वाइन करें। बेशक आप लोग इंटर कॉलेजिएट जो फंक्शंस हो रहे होते हैं आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप जरूर करें, ठीक है, कोई मसला नहीं। प्रोफेशनल एक्सपोजर आप लोग कैसे गेन करेंगे? प्रोफेशनल एक्सपोजर आएगा आपके पास इंटर्नशिप्स करके, ठीक है। बिल्ड कनेक्शंस आप लोग करेंगे कैसे? लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। आप लोग फेसबुक के जो ग्रुप्स होते हैं, जो कि फार्मेसी ग्रुप स्पेसिफिकली होते हैं, जो कि डिफरेंट कॉलेजेस ने बनाए होते हैं, आप लोग वो ज्वाइन करें फेसबुक पे। ऑनलाइन हर चीज मौजूद है, आप लोग फायदा उठाएं उस चीज का, ठीक है। ये कोई अब जो है ना वो स्टोनेज नहीं है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, हर चीज का पता है आप लोगों को। लिंक्डइन पे कनेक्शंस बिल्ड करें, ठीक है। आप लोग अपने अपने तो लोगों को ऐड करेंगे, आप लोग डिफरेंट कॉलेजेस के लोगों को ऐड करें, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में अच्छा ये काम हो रहा है, ऑलराइट, इस तरीके से। इसके अलावा नेवर हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स, ठीक है। आपके सीनियर्स आपको अपनी जो
चल रहा है ना जिंदगी में, वो आपको उसके बारे में बताएंगे। हर बंदे की सीनियर से दोस्ती होती है, तो हेल्प लें आप लोग सीनियर से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वो आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। वो आप लोगों को आपके जो एग्जाम्स होते हैं उससे कैसे निकलना है उससे बता देंगे, ठीक है। तो लें आप लोग हेल्प। इसके अलावा जो बेसिक टूल्स आप लोगों को पता ही है, हमारे पास MS वर्ड है, कैनवा, पावर पॉइंट, SPSS, एक्सेल है, ठीक है, गूगल शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट आपके इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। ऑलराइट, थर्ड ईयर ये है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मुझे मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था, एंड आई एम ग्लैड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इस चीज़ पे फॉलो किया और मुझे फायदा हुआ। मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला जब मैंने इंटर्नशिप्स की हैं। सबसे पहले जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आई वुड से आप लोग रिटेल फार्मेसी की इंटर्नशिप लाजमी करें, ठीक है। गर्ल्स जो इधर हैं, आई नो कुछ के पेरेंट्स वगैरह कहते हैं कि नहीं तुम क्या फार्मेसी में खड़ी होगी, तो इसमें जो है ना आप लोगों ने रिटेल करें, कुछ भी नहीं होता, कोई आपको नहीं खाता, कोई आपको बुरी नजर से नहीं देखता, ठीक है। सब अपने काम से काम करते हैं, इवन आपके तो जो सुपरवाइजर जो लीड होते हैं ना, वही आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। थर्ड ईयर में रिटेल की इंटर्नशिप इज मस्ट, एंड आई विल टेल यू व्हाई इट्स मस्ट। देखें, आप लोग सेकंड और थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं ना, अब जब आप लोग रिटेल में पेशेंट के साथ आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ठीक है। उसके आपने देखा होगा हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर ने डायग्नोसिस लिखा हुआ है। अब वो डायग्नोसिस लिखा हुआ है ना, उसके नीचे ड्रग्स देखें उन्होंने कौन सी इसको प्रेस्क्राइब की हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा, उसको बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं, एटिनोलोल, प्रोप्रानोलोल, इस तरह की। आपको ब्रांड नेम के बारे में पता होगा। अब इधर से मेरा एक सवाल है कि काफी लोगों को नहीं पता होगा, इधर हो सकता है कुछ को पता भी हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता होगा कि पेनाडोल का मैन्युफैक्चरर कौन है, मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ठीक है, GSK ही है, GSK ही है। लेकिन देखें, इक्का दुक्का बंदे का मुझे आ रहा है, मुझे चाहिए कि मुझे हर बंदा जवाब दे, ठीक है ना। तो नहीं पता आप लोगों को, क्यों नहीं पता? क्योंकि आप लोगों का एक्सपोजर ही नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। बस पता है कि ब्लू कलर की दवाई जो है ना वो पैराडोल होगी, फटाफट वो पे डाली खा ली, ठीक है। तो ओके, तो ये आपके पास जो है ना, ये डिटेल में आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इंडस्ट्री फार्मेसी की इंटर्नशिप है। आप लोगों को जो है ना, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के टूर भी करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी फोर्थ ईयर में, जो है ना मस्ट होते हैं, आई गेस, आई डोंट नो मस्ट है कि नहीं, लेकिन हमें करवाए गए थे हमारी यूनिवर्सिटी में। तो इंडस्ट्री की जो है ना आपने लाजमी जो है ना उसमें इंटर्नशिप करनी है। अब आप लोग ढूंढे कैसे इंडस्ट्री? सबसे पहले एक तो जो बेसिक है, प्राइमरीली आप लोग अपने सीनियर से पूछे उन्होंने कहाँ पे इंटर्नशिप की थी, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस जाने के, उनको उन्होंने कुछ सीखा भी है कि नहीं, ठीक है। या ये है कि बस वो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जो है ना वो उधर गए थे। तो इंडस्ट्री में जो है ना आपने ये देखना है, इंडस्ट्री में जो है ना हर चीज़ के पोर्शन बने हुए हैं, प्रोडक्शन एरिया, उसके अलावा QC का एरिया, स्टेराइल एरिया, हर चीज़ बनी हुई है, आपने वो देखनी है। क्योंकि यही आपको, अगर आप लोग इंटर्नशिप करेंगे ना, यही चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे अपनी नीश डिफाइन करने में, कि मैंने फाइनल ईयर के बाद जब जॉब हंट करनी है तो मैंने किस एरिया में जाना है, ठीक है। फोर्थ ईयर से अपना माइंड डेवलप कर ले कि भाई मैंने इधर जाना है। जैसे मैंने अपना माइंड डेवलप कर लिया था कि भाई यू आर नॉट मेड फॉर इंडस्ट्री, ठीक है, मैंने जाना ही क्लिनिकल साइड पे है, तो वो उसमें मैं देखूंगी। तो ये आप लोग इस तरीके से डिफाइन कर लें कि आपने किधर जाना है, मैंने आगे जाके फिर धक्के, मैं कहूँगी इनफॉर्मल वर्ड है, धक्के ठुडे ही खाने हैं, ठीक है। तो फिफ्थ ईयर में आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी आती है। हॉस्पिटल फार्मेसी जो मैंने की थी, दैट इज म्यू हॉस्पिटल का, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप लोगों को पता होगा, अनारकली गंगाराम, सॉरी, अनारकली नीला गुंबद वाली साइड पे है वो म्यू हॉस्पिटल, मैंने उधर की थी। लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, आप लोग अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना चाहते हैं तो यू शुड गो टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ना डोज कैलकुलेशन सिखाई जाती है, और भी बहुत, मतलब आपको हैंडलिंग, पेशेंट हैंडलिंग सिखाते हैं। मी हॉस्पिटल में ऐसा कोई खास नहीं था जो कि मैं कहूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा, थोड़ी मैं डिसअपॉइंट हुई थी हॉस्पिटल की हालत देख के। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग गवर्नमेंट साइड में करना चाहते हैं, गो टू चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और अगर आप लोग प्राइवेट साइड पे जाना चाहते हैं, गो फॉर शौकत खानम, ठीक है। शौकत खानम की आपको इंटर्नशिप आती है, चुप करके उधर अप्लाई कर देना है, आपने जाना है उधर, वो आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता चलता है, एक तो एडवांस है, ठीक है, हर चीज़ उनकी ऑटोमेटेड है, हर चीज़ उनकी जो ना ऑनलाइन है, तो ये आप लोगों को देगी। क्योंकि और दूसरी बात है, वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के साथ एफिलिएटेड भी है। आपको ही फायदा होगा, आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट, आपके पास इंटर्नशिप का अच्छा आएगा, जो लोग बाहर जाने का प्लान करेंगे वो अपने वीजा के साथ लगा सकते हैं, तो आपके फायदा होगा। तो ये होगी बात आपके इंटर्नशिप्स की। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल टेक्नो का प्रोजेक्ट है, क्लिनिकल फार्मेसी है, इससे आप लोगों को एक और चीज़ भी सीखने को मिलेगी। जब आप लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स में आपको रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी आपकी जो है ना स्किल्स डेवलप होती हैं जब आप प्रोजेक्ट करेंगे। और ये मैं आपको कह रही हूँ, अकेले जो है ना एक बंदे को लीड नहीं देनी, आपने उनके साथ काम करना है, आपने हर चीज़ सीखनी है। ये नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरी क्लास में ऐसे होता था कि स्टूडेंट्स ऐसे डिवाइड कर लेते थे काम, और जो ना या फिर एक ही बंदे को दे देते थे कि भाई आप करो, वो करता रहता था और वो बाकी सारे एंजॉय करते रहते थे, ठीक है, इधर उधर घूमना फिरना। ये नहीं ठीक है। वो अकेला बंदा जो कर रहा है ना, वो सारा काम कर रहा है, वो सीख रहा है, उसको वो उस चीज का फायदा होगा। आप लोग वेलियां मारेंगे, आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोगों ने रिसर्च, अगर जो जो लोग मास्टर्स का प्लान करते हैं, जिनको जिन्होंने लाइसेंस एग्जाम नहीं देना, जो मास्टर्स का प्लान करते हैं, एमफिल वगैरह, तो आपको रिसर्च करनी आ जाएगी। आपको जो आपका सुपरवाइजर है ना अभी जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आपको एक टॉपिक दे देंगे। अब आपने जाना है वो आर्टिकल्स और जर्नल से जाना बैठ के वो उसके बारे में रिसर्च करते रहनी है। वो आप लोग रेलिवेंट चीजें लेकर आएंगे। रिसर्च का जो रूल है, कंसाइज हो, एक्यूरेट हो, अप टू डेट हो, ऑथेंटिक सोर्स हो और टू द पॉइंट हो। एक्स्ट्रा चीजें नहीं कोई भी पसंद करता। तो ये आप लोग देख लीजिएगा प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोगों को मैं ये कहूँगी सबने पार्टिसिपेट करना है। अपने जब मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स में हर चीज़ में लीड ले लेती थी, ठीक है, कि मैंने करना है, मैंने करना है इस चीज़ को। तो नेक्स्ट आपके पास है स्कोप इन पाकिस्तान, जो है ये है हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट है,
क्वालिटी एश्योरेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, हॉस्पिटल फार्मेसी, रिटेल को कम्युनिटी फार्मेसी भी कहते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी का मैंने जिक्र इधर इसलिए नहीं किया क्योंकि सिर्फ एक शौकत खान कह लें, आगा खान कह लें, सिर्फ ये 2 हॉस्पिटल्स ही हैं जो कि मतलब क्लिनिकल करवाते हैं, इसलिए मैंने इधर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग ये माइंड में रख लें। बाकी यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारे जो ना आप लोग जब इंडस्ट्री की इंटर्नशिप करेंगे आप लोगों को ये नीश की समझ आ जाएगी कि ये कौन-कौन सी हैं और आपने किस में जाना है। लाइसेंस एग्जाम की बात करें तो हमारे पास आता है यूएसए है, कनाडा, यूके में, यूरोप, गल्फ स्टेट, पीपीएससी हमारे पाकिस्तान का है और बाकी कंट्रीज को मैंने इधर लिख दिया हुआ है। ओके, दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं, मैं उनके वन बाय वन आंसर करती हूँ। अच्छा किरण, आपका सबसे पहले सवाल है कि फार्मेसी स्टूडेंट्स कैसे बैलेंस कोर्स वर्क, स्टडिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देखें इसका जो है आपकी बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने किसी भी चीज की जो है ना ज्यादती नहीं करनी है। ज्यादती इन सेंस कि एक आप जो है ना जब आपका पढ़ने का टाइम है आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में चले जाएं, ठीक है। आप लोग मतलब पढ़ाई को इग्नोर करें। हर चीज में जो है ना आपने टारगेट्स रखने हैं, आपने अपना एक शेड्यूल बनाना है कि मैं इस टाइम मैंने इतना टाइम जो है ना अपनी स्टडी को देना है, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ जाना है। कोई इतना ज्यादा किसी चीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग बिल्कुल इनको निगलेक्ट करें, होनी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए हर चीज में। और आप लोग और हर बंदे की जो है ना, मैं अगर अपना बताऊं तो मैं मतलब यूं कर लेती होती थी जब मेरा प्रॉफ होता था, एग्जाम्स होते थे, तो मैं अपने जो ना मेरे पहले मैंने अय्याशी करनी होती थी जो पहले मेरे मंथ्स होते थे ना, लेकिन जो एंड के जब पता था कि एग्जाम इस मंथ में है तो मैंने फिर हर चीज को खत्म कर देना। मैंने कोई जो ना मैंने सीजन वगैरह जो भी मैं देखती हूँ, मैं कोई फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करती हूँ, मैंने हर चीज को छोड़ देंगे। फिर मैंने अपना एक शेड्यूल बना लेना कि अब मैंने पढ़ना है तो बस पढ़ना है, बाकी सारे मेरी इंजॉयमेंट होगी हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टडी स्ट्रेटजीज। मैं आपको बताऊं कि अगर इफ यू आस्क मी, मैं फार्माकोलॉजी के बारे में आपको बताती हूँ। आपने निमोनिक्स बनाने हैं। कुछ चीजें जो ना देखें, 2 चीजें होती हैं, या तो आप कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें पढ़ते हैं या फिर आप जो होती है ना क्रैमिंग करते हैं। कुछ हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि क्रैमिंग डिमांड करते हैं, ठीक है। क्रैमिंग जो है, क्रैमिंग जो जो चीजें सब्जेक्ट्स आपके क्रैमिंग डिमांड करते हैं ना, आप उसमें उसको क्रैम करें, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट घुसाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट्स बनाएं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फार्माकोलॉजी की एग्जांपल दूं, उसमें जो है ना आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, रट्टा नहीं लगाना, फ्लो चार्ट्स बनानी है। मैं फ्लो चार्ट्स बनाया करती थी उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, और मैं उसको याद करती थी, मुझे याद होते थे, बहुत ईजी है। आपने ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड लिखना, यू शुड गेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि उसमें हो क्या रहा है किसी भी चीज के अंदर। और उसके अलावा जो आपके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो तो जो थे ना कुछ कुछ चीजों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन्स की आपको पता है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ है, आप लोग इस तरीके से याद करेंगे। चीनी टाइनी डिटेल्स में आपने नहीं जाना, ठीक है। आप बस याद करेंगे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके हैं हाउ कैन समवन अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। आप इंडस्ट्री की इंटर्नशिप देखें, मैं आपको बताऊं, आप लिंक्डइन पे जो है ना अप्लाई करें। लिंक्डइन पे आप जो है ना अपने अकाउंट वगैरह बनाएं। अब उसके बाद जो है ना आपने जो आपको पसंद है इंडस्ट्रीज, ठीक है, आप उनके पेजेस को फॉलो करें। वो लगाते हैं इंटर्नशिप्स के बारे में, आप उधर से देखें, उधर आप लोग उनके बारे में पता रहे। आप उनके अगर एचआर के साथ आप लोग इंटरेक्ट करें, कनेक्शन बिल्ड करें, ठीक है, नेटवर्किंग करें, वो आपको बता देते हैं कि हाँ भाई इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं। तो आप इसके अलावा अपने सीनियर से पूछें कि वो लोगों ने कहाँ पे इंटर्नशिप किया और उधर का एनवायरमेंट कैसा था, वाज देयर एनी लर्निंग एनवायरमेंट, या फिर वो बस उनको वेले बिठा दिया जाता था। क्योंकि कुछ मैंने ऐसा सुना था कि ऐसी इंटर्नशिप्स थी जहाँ पे कुछ इंडस्ट्री में स्टूडेंट को हाथ नहीं लगाने देते थे, कोने में बिठा देते थे और एंड पे 15 दिनों के बाद सर्टिफिकेट दे देते थे कि आपकी भाई कंप्लीट हो गई है। तो अपने सीनियर से कंसल्ट करें। इसके अलावा लिंक्डइन पे खुद देखें, फेसबुक पे आता है, तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। यस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आपको देखिए सबसे पहले जो आपकी एक है ना कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी जब आपने वीजा का इंटरव्यू देने जाना है ना, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सबसे पहले उधर आ जाएंगी वो, ठीक है। इसके अलावा हाँ कंसिडर की जाती हैं कि आप लोगों ने किस किस चीज़ में पार्टिसिपेशन वगैरह शो की हुई है। मैंने अगर आपने मेरी मिस की है मिसपा, तो मैंने अपने बताया है कि 3rd ईयर में आप इंटर्नशिप करती हैं रिटेल की, 4th ईयर में आप इंडस्ट्री की करती हैं, और फाइनल ईयर में आप हॉस्पिटल की इंटर्नशिप करती हैं। ये बेस्ट टाइम्स होते हैं। और आई डोंट नो आपका सेमेस्टर सिस्टम है या फिर आपका एनुअल सिस्टम है, लेकिन अगर आपका एनुअल सिस्टम है ना, तो एग्जाम्स होने के 3 महीने पहले आप इंटर्नशिप करके फारिग हो जाएं। मतलब मैंने जब की थी ना, मैं दिसंबर में हम जो है ना सारी फ्रेंड्स मिलकर इंटर्नशिप कर लेते थे, क्योंकि हमें वो कुछ हाँ सबसे बेहतर है कि आप विंटर वेकेशन में करें, क्योंकि छुट्टियां तो होती हैं, तो आप उसमें करें, विंटर वेकेशन में आप लोग करें इंटर्नशिप। अच्छा, आपने ड्रग्स के नेम याद करने हैं, निमोनिक्स बनाए, ठीक है। निमोनिक्स बनाने का तरीका ये है कि एक तो आप खुद भी बना सकते हैं, खुद आप लोग फनी फनी बनाते हैं, वो आप लोग को याद रह जाते हैं। मैं भी फनी फनी बनाया करती थी। वरना अगर नहीं आपके अंदर इतनी एबिलिटी कि आप उसको बनाएं निमोनिक्स, आप लोग यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतर, सारे ड्रग्स के नाम चैट जीपीटी में डालें, उसको कहें कि मेक निमोनिक फॉर दिस, वो आपको निमोनिक्स बना के दे देगा। इस तरीके से आप ड्रग्स के नेम याद करें कि इस क्लास के अंदर ये ड्रग्स आते हैं और याद हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ ना निशानियां भी होती हैं। अब जैसे बीटा ब्लॉकर्स में लोल आता है एंड पे, जो हमारे पास एक क्लास है कैप्टोप्रिल की, उसमें सारों में एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सारे आते हैं। ये भी बीपी की ही आई गेस हैं मेडिसिन। इंटर्नशिप नो नो आई डोंट थिंक सो कि हम बाहर इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर कर भी सकते हैं तो मुझे आइडिया नहीं है। नेपलेक्स की प्रिपरेशन अभी से नेपलेक्स फाउंड ही तो क्लियर कर लो पहले। अच्छा, नेपलेक्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है ना सबसे पहले तो आपका एफपीजी होगा। एफपीजी आपकी जो है ना वो है स्टार्टिंग है। एफपीजी करने के लिए जो है ना आपको जो बुक होगी फार्माकोलॉजी के लिए आप लोग करें लिपिनकोट, कोई और बुक नहीं देखनी, जस्ट लिपिनकोट, पूरी बुक इतनी मोटी बुक है, इसको आपने मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। नेपलेक्स
जो है ना उसकी बुक है हमारे पास CPR बाय नेपलेक्स, शायद मेरे पास इधर पड़ी हो, नहीं अभी नहीं पड़ी हुई, लेकिन इतनी मोटी बुक है वो आपके बेसिकली नेपलेक्स के लिए, लेकिन उसमें से जो है ना कुछ टॉपिक्स आपने जो है ना उधर से प्रिपेयर कर लें FPG के लिए। इसके अलावा ये एक बुक है मेरे पास, दी आफा कंप्लीट रिव्यू फॉर दी FPG, ठीक है, ये मैंने बुक खरीदी है। इससे जो है ना ये टोटली जो है ना इसके लिए ही बनी हुई है, FPG के लिए। तो पहले आप लोग FPG करेंगे, फिर आप लोग नेपलेक्स की तैयारी करेंगे। नेपलेक्स के लिए और भी मैंने जो देखे हुए ना जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं उधर से आपको ज्यादा होता है, जैसे कि RX प्रेप है। इसके अलावा एक और है, मेरे जहन से भी निकल गया, आई गेट बैक टू यू जब मुझे याद आया। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको देखना चाहिए प्रोफेशनली बिहेव आपने कैसे करना है, कि उधर इनफॉर्मल तरीके का तो पहली बात तो एक्सेप्टेबल होता नहीं। आपने प्रोफेशनली बिहेव कैसे करना है, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी बात आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है, आप उसको कितने टाइम में मैनेज कर सकते हैं। अगर आप कोई टास्क दिया और कहा जाए कि इसको इस डेडलाइन तक करना है, तो क्या आप इस काबिल हैं कि आप उसकी डेडलाइन मीट कर सकते हैं, ये आपको स्किल्स पता होनी चाहिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है लाइसेंस एग्जाम के लिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, क्लिनिकल फार्मेसी है, ठीक है। इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्लिनिकल रिसर्च इसलिए, और फार्मास्यूटिकल टेक्नो और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता फार्मास्यूटिक्स में हमारे पास फिजिकल फार्मेसी, डोजेज फॉर्म साइंस, ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। 5th सेमेस्टर आपने अभी स्टार्ट किया है, यानी कि आप 3rd ईयर में हैं। 3rd ईयर में देखिए आप अपना अपने एग्जाम्स देखें। अब आपका मुझे सही तरीके से टू बी ऑनेस्ट नहीं आइडिया कि मिड्स और आपके फाइनल्स के बीच में कितना टाइम होता है जो आपको इतना स्पेयर दिया जाए कि आप कर सकते हैं मैनेज। और अगर और आई गेस आप लोगों का अटेंडेंस का भी इशू होता है काफी ज्यादा, तो फिर आप ऐसा मैं आपको सजेस्ट करती कि आप दिन के टाइम में कर लें जो, या शाम के टाइम अगर आपको दिया जाए तो यानी 12 बजे से पहले तक 8 से 12 तक आप इंटर्नशिप कर लें, फिर आप यूनिवर्सिटी आ जाएं। तो ये अब आपको खुद ही बेहतर पता होगा कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, या आप लोगों का क्या स्केड्यूल है, क्या आप लोगों के मिड्स और उसका, क्योंकि मैं एनुअल सिस्टम में पढ़ी हुई हूँ, तो मुझे यही पता है कि मैंने दिसंबर या जनवरी में करनी थी, और आगे फिर जना 3 महीने पहले मेरा प्रॉफ का, लेकिन कुछ लोग जून में भी कर लेते होते थे। तो मंथ्स में आपको बता सकती हूँ, मैं आपका वो नहीं बता सकती एग्जैक्ट टाइम। आई गेस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। शुड आई वेट? अभी अगर रिटेल में करनी है इंटर्नशिप, तो अभी मेरे ख्याल से आप थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ी सी फार्माकोलॉजी पढ़े, और फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कि कब थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी तो होना, कि उधर जाके आपको पता ही ना हो कि मैं कौन सी ड्रग्स पढ़ूं, कि वो आपको पता है, आपके जो सुपरवाइजर होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका टेस्ट भी लेते हैं कि संगा कि आपने जो इधर पढ़ा है ये वो, तो आप देख लें। मेरे ख्याल से थोड़ा आप वेट कर लें। फिर सेकंड ईयर में कुछ नहीं करना, सेकंड ईयर में आपने जस्ट फार्माकोलॉजी पढ़नी है बस। उसमें आपने ऑब्जर्व करना है चीजें कि अच्छा मैं किस पानी में चल रहा हूँ, मुझे कुछ आता भी है कि नहीं, तो बस आपने बेसिक बनानी है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में बेस ही बनानी है आपने, नथिंग एल्स। इंडस्ट्री की जो इंटर्नशिप है वो 4th ईयर में होती है। 4th ईयर मेरे ख्याल से बनता है 7th सेमेस्टर आप लोगों का, तो आप लोग मेरे ख्याल से 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप कर लें, ताकि आपको इंडस्ट्री में जो आपको इंडस्ट्री फार्मेसी का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसके बारे में नो हाउ तो होना, कि आप लोग उधर कौन सी मिल्स पढ़ते हैं, कौन सी उधर किस तरीके के ड्रग्स जो बन रहे हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस है, टैबलेट्स कैसे बनती है, कैप्सूल्स कैसे बनती है, थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाए, तो मेरे ख्याल से आपको 8th सेमेस्टर में करनी चाहिए। हॉस्पिटल के लिए आपने फाइनल ईयर में करनी है, ठीक है। फाइनल ईयर में भी मेरे ख्याल से आप, अच्छा फाइनल ईयर का ना एक और सीन ये है कि आप ना बड़े, आपकी रूटीन टफ हो जाती है, हेक्टिक हो जाती है, वो इसलिए क्योंकि आप पे ना बर्डन होता है, आपने 2 प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हो, ठीक है, हर चीज में आपने आगे लीड लेनी है, तो बड़ा ये हेक्टिक हो जाता है। तो इसको बहुत अपने तरीके से लेकर चलना है आपने, जो ना सबसे पहले अपना जो प्रोजेक्ट है ना इसको टाइमली कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना उसको घसीटना नहीं है, जितना जल्दी आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो ना, तो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और उसके बाद सुकून से आपने इंटर्नशिप करनी है, आप जब आपको सूटेबल लगे। डोज कैलकुलेशंस के लिए बुक आती है हमारे पास फार्मा, मेरे पास अभी फिलहाल बुक्स पड़ी नहीं हुई, करीब नहीं, इन रीच नहीं है मेरी, वरना मैं आपको जरूर दिखाती। मैंने फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के लिए बुक्स ली हैं, उसमें जो ना आप चैप्टर्स बने होते हैं। अगर आप इतनी पैशनेट हो तो आप अभी से बेशक बुक्स खरीद लो, USA के लिए या कोई भी कहीं पे भी आपने जाना, कैलकुलेशंस तो होनी ही होनी है, तो कोई भी खरीद लो आप कैलकुलेशंस के लिए बुक। मेडिसिनल केमिस्ट्री की स्पेशल कोई बुक नहीं होती है। आपने ये जो आपको मैंने CPR फॉर नेपलेक्स बताई है ये, या फिर ये जो आप आफा मैंने आपको बुक बताई है, या फिर आपके पास हाँ इन्हीं के अंदर जो होते हैं ना उन्होंने चैप्टर्स बनाए होते हैं, उन्हीं से आपने जो ना मेडिसिनल केमिस्ट्री करनी होती है। अगर आप अलग से करने लग जाओ तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा। और बाकी आप रूटीन में जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उससे पढ़ें, अगर टू बी ऑनेस्ट कवर हो जाता है, क्योंकि मैंने अपना एक छोटा सा टेस्ट लिया था, एक क्विज टाइप ही कुछ किया था मैंने, तो अपना लिए चेक करने के लिए कि मुझे क्या मेडिसिनल केमिस्ट्री आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अच्छे मेरे मार्क्स बने थे उसमें, तो उससे मुझे आइडिया हो गया कि ठीक है जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया और जिस तरीके से मैंने पढ़ा वो सही है मेडिसिनल केमिस्ट्री। लाइसेंस एग्जाम मैंने अभी दिया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बुक्स के बारे में बता देती हूँ। ये आप मुझसे मेरे ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, जो मैं भी स्लाइड शेयर करूंगी जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप मुझसे लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी उधर बुक्स के सबके नाम। फाइनल ईयर में जो कौन से सब्जेक्ट प्रेफर करने चाहिए, फाइनल ईयर में सब्जेक्ट आपको प्रेफर करने चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। और जो 4th ईयर में हॉस्पिटल फार्मेसी है वो आपने उस पर फोकस करना है, अगर आप लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। और फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे लिंक्ड है, लेकिन अगर फाइनल ईयर का स्पेसिफिकली पूछे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी। Okay, thank you so much, Fatma, for sharing with us this great information today. Now, I would like to invite Muhammad Harun Mehboob to deliver his speech. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us for this
our very first webinar. As the Vice President of Mediversa Alliance, our journey began with a vision to empower healthcare professionals and students by fostering collaboration, sharing knowledge, and promoting health literacy. Today, with your support, we take a crucial step forward. This webinar marks the beginning of many initiatives aimed at providing educational opportunities, raising awareness on important health issues, and encouraging innovation with the healthcare sector. I encourage you to actively participate and engage with the content. This is your platform and your contributions will shape its future. Together, we will create a platform where healthcare professionals, students, and researchers can connect, learn, and grow. Our mission is to equip you with the tools and knowledge to face the challenges of modern healthcare and to foster a community that drives positive change. Thank you once again for being part of this journey. Let's make an impact together. Assalamu alaikum, this is Mohammed Mudassir Wakil. I am the founder and president of Mediversa Alliance. अब क्योंकि सेशन जो है हमारा वो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब मैं ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस मैं जनरल से बता दूँ कि आज सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फातिमा इदरीस का कि उन्होंने जो है सेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमारी हेल्प की, और उसके बाद जो है हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम और कम्युनिकेशन टीम है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है भरपूर मेहनत की और इस सेशन को जो है ना पॉसिबल बनाया। बाकी अब मैं मेडिवर्सा अलायंस की अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मेडिवर्सा अलायंस का इंट्रोडक्शन किरत ने स्टार्ट में दे दिया था, तो लेकिन अगर आप मेरे से सुनना चाहेंगे तो मैं इसको ज़रूर रिपीट करूंगा। तो मेडिवर्सा अलायंस जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैंने जनवरी के मंथ के अंदर जो है हमने इसे क्रिएट किया था। मेडिवर्सा अलायंस को क्रिएट करने के पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि मैंने नोट किया कि जो डिफरेंट जो एमबीबीएस या बीडीएस की कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फार्मेसी के अंदर जो है मुझे कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी कोई कम्युनिटी को जो है डेवलप किया जाए जो कि डिफरेंट हेल्थ केयर कम्युनिटीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना जमा करे। तो इसलिए मैंने मेडिवर्सा अलायंस को जो है ना फॉर्म किया, और मेडिवर्सा अलायंस का अगर आप मीनिंग भी देखें तो मेडी जो है वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, और वर्सा का मतलब जो है वो वर्सेटिलिटी है, और जबकि अलायंस जो है अलायंस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो कलेक्टिव मीनिंग हुआ तो वो ये हुआ कि जितनी भी फील्ड्स हैं जो कि हेल्थ केयर के अंदर आ जाती हैं उन सबको जो है एक प्लेटफॉर्म के अंदर जो है अंडर जमा करना, और उसको हम मेडिवर्सा अलायंस कह रहे हैं। तो मेडिवर्सा अलायंस जो है फिल वक्त हमने उसके 2 चैप्टर्स को अनाउंस कर दिया है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर चैप्टर है और दूसरा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी चैप्टर। तो और हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में भी काफ़ी सारी जो है फातिमा इदरीस जिन्होंने आज प्रेजेंट किया है वो भी हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में है। तो उन सब जितने भी बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की और हमें सपोर्ट किया, मैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और अपनी टीम का एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं आप सबको जिन्होंने भी इस सेशन को जो है देखा वो उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सेशन को जो है वॉच करके मेडिवर्सा अलायंस को सपोर्ट किया। और मैं ये भी बता दूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है वो फीडबैक फॉर्म एक कमेंट्स में जो है उसका लिंक शेयर कर दिया गया है, तो फीडबैक फॉर्म को जो है वो फिल कर लें। आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके ई सर्टिफिकेट शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर माय साइड। Thank you all for joining us today and for your valuable contribution. We hope you find the session insightful and informative. Wishing you all the best as you apply these learnings moving forward. Allah Hafiz.